السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء طالبات، نظامت کے بارے میں، نظامت کس طرح سے کرنا ہے اس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. تو آئیے درسی کتاب میں پچھلے لیکچر میں ہم نے نظامت کی تعریف، نظامت میں ناظم کس طرح سے ہونا چاہیے یہ پڑھ چکے ہیں. اب پیج نمبر 148 نظامت کیسے کرے، اس میں الف دیا گیا پیشگی تیاری. کوئی بھی کام ہو تو اس کی ابتدائی پیشگی تیاری، ایڈوانس تیاری بہت ضروری ہے. اس میں پہلا ہے مطالعہ. مطالعہ علم میں اضافے اور معلومات کی حصولیابی کے لیے حصولیاتی کا ذریعہ ہے. اس سے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ اور فکری ارتقاء ہوتا ہے. کامیاب ناظم اپنے شعبے کے لحاظ سے مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تاکہ اس شعبے سے متعلق صحیح و مستند معلومات کا بروقت اظہار کر سکے. اب جو ناظم ہوتا ہے تو پروگرام سے پہلے وہ مطالعہ کرتا ہے اور جو پروگرام ہے اس پروگرام کے بارے میں مستند یعنی جو پکی بات ہو، سند کے ساتھ ہو، دلیل کے ساتھ ہو، اس بات کو یعنی صحیح بات کا مطالعہ کر کے صحیح معلومات لوگوں تک پہنچانے کی فکر کرتا ہے. اور یہ سب چیزیں مطالعے سے ہی کیا ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے. ورنہ سنی سنائی بات کو اگر پیش کریں گے تو وہ مستند نہیں کہلائے گی. سنی سنائی باتیں ہوں گی، لیکن اگر پڑھ کے دلیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی کوئی معلومات، وہ ہندوستان کی آبادی ہے یا حالات ہے، تو حالات کو پیش کرنے کے لیے کوئی بات ہو وہ سند کے ساتھ ہو، مستند ہو کہلاتی ہے. اخبارات کے مطالعے سے وہ حالات حاضرہ سے واقفیت حاصل کرتا ہے. زبان و ادب اور شعر و افسانے کی مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے صحیح زبان، صحیح تلفظ سے اور ضرورت کے مطابق موضوع اشعار بھی سناتا ہے. ناظم صرف ایک ہی زبان کا مطالعہ نہیں کرتا بلکہ وہ مختلف زبانوں سے بھی واقفیت حاصل کرتا ہے تاکہ موقع و محل اور ضرورت کے لحاظ سے اسے استعمال کر سکے. جیسے یہ لفظ ہے جس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نظامت. اب نظامت ہے تو نظامت یہ لفظ اردو کا ہے، انگریزی میں اس کو کیا کہیں گے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جس کو اینکرنگ کہیں گے. ناظم ہے، ناظم جو لفظ ہے نظامت کرنے والا، انگلش میں اس کو کیا کہیں گے، اینکر کہیں گے. مراٹھی میں نظامت کو ستر سنچالن کہیں گے، ستر سنچالن کہیں گے. تو یہ جو ہے معلومات ہونا بہت ضروری ہے کہ مراٹھی میں ستر سنچالن کسے کہا جاتا ہے، اس کے بعد انگلش میں نظامت کو کیا کہتے ہیں. تو یہ باتیں الگ الگ زبانوں سے کے مطالعے سے حاصل ہو سکتی ہے. مطالعے کی دو قسمیں ہیں، یعنی پڑھنا جو ہے ریڈنگ کرنا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، دو ٹائپس ہے. پہلا ہے مسلسل مطالعہ، یعنی ہمیشہ مطالعے میں رہنا، چاہے وہ اس عنوان کی ضرورت ہو یا نہ ہو، ہمیشہ مطالعہ کرتے رہنا کسی بھی کتاب کا. دوسرا ہے وقتی مطالعہ، جیسے آج پروگرام ہے مذہبی تو مذہبی کتابیں اٹھا کر مطالعہ کیا جاتا ہے. کل پروگرام ہے سیاسی تو سیاسی یعنی وقتی اعتبار سے، لیکن ہمیشہ مطالعہ کرنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. تو دیکھیں پہلا مسلسل مطالعہ، کنٹینیوسلی مطالعہ. یہ مطالعہ با مقصد ہونا چاہیے. جب بھی ہم کسی چیز کا مطالعہ کہتے ہیں اس کے پیچھے جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہم اس کا مقصد ہوتا ہے. تو یہ مقصد کیسا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہو اس کا مقصد ہونا چاہیے. بغیر مقصد کے کوئی، اگر ہم دیکھیں ہمیشہ کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو کہیں جانا رہتا ہے تو اس کا مقصد ہے، تو اس کی منزل طے رہتی ہے کہ مجھے وہاں تک جانا یہ میرا مقصد ہے. لیکن اگر ایسا آدمی جس کا دماغی خلل ہو، جس میں دماغ میں توازن بگڑ چکا ہو، وہ جب بھی نکلتا ہے گھر سے یا کہیں بھی ہوتا ہے اس کی منزل کوئی طے نہیں رہتی، جس کو ہم پاگل کہتے ہیں. تو ہماری منزل ہمارا مقصد یہ طے ہونا چاہیے. اپنے ذوق و شوق کی تکمیل کے لیے اس مطالعے کو باضابطہ جاری رکھنا چاہیے تاکہ معلومات میں اضافہ ہوتا رہے. یعنی ایک وقت طے کرنا چاہیے مطالعے کا، اور اس وقت سے زیادہ مطالعہ ہونا چاہیے، کم ہونا نہیں چاہیے. اس سے انسان کے معلومات میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے. نمبر 2 وقتی مطالعہ. یہ مطالعہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ہوتا ہے، تقریب کی نوعیت کے لحاظ سے، تقریب کے مقاصد کے پیش نظر، مشمولات، مقررین اور نکات کا لحاظ رکھتے ہوئے کچھ اہم اور منتخب مواد کا مطالعہ نظامت کو مؤثر بنانے میں مددگار ہوتا ہے. جیسے سیاسی پروگرام ہے تو سیاسی پروگرام میں آنے والے جو چیف گیسٹ ہے، مہمان خصوصی جو ہے، وہ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ شعبہ ہندوستان میں کتنا مشہور ہے، پوری دنیا میں کیا نوعیت کا حامل، کس نوعیت کا حامل ہے. تو ایسے وقت میں انسان وقتی طور پر اس کی معلومات لیتا ہے. اب لفظ مقاصد آیا، کیا لفظ آیا، مقاصد.
अब ये जमा का किसकी है, मकसद की क्या है, वो जमा है। ऐसे जो वाहिद, जमा, मुतजाद अल्फाज हमें जहन में बार बार रहना चाहिए। मकसद की क्या है, वो जमा है। नंबर 2 उसमें दिया गया है कि समात, सुनना, एक अच्छे और पेशावर नाजिम को बेहतरीन सामे भी होना चाहिए। निजामत कर रहा है और सुन नहीं रहा है, उसको तो हर एक की बात को भी सुनना है और अपनी तवज्जो सबकी तरफ रखना चाहिए। कहां से कोई बात पेश की जा रही है तो उसको सुनना है। इसे चाहिए कि प्रोग्राम की निजामत से पहले दीगर तकरीबात के नाजिम हजरात की निजामत को बगैर सुने, उनकी खूबियों और खामियों को नोट करे, दूसरों की गलतियों से भी सीखे, उनकी खूबियों को ध्यान में रखकर नई खूबियां पैदा करे। ये बहुत अच्छी बात बताई गई कि हम जिस शोबे में काम करना चाहते हैं, निजामत करना चाहते हैं, तो हम निजामत करने जाने से पहले हम कई लोगों की निजामत को सुने, जो हमें उनकी खूबियां नजर आती है वो अपने अंदर ले, जो खामियां नजर आती है उसको नोट डाउन करें और उन खामियों को अपने अंदर लाने की फिक्र नहीं करे, उसको कम करने की फिक्र करे। सुनने से तलफ्फुज की इस्लाह होती है। कुछ तलफ्फुज ऐसे होते हैं जो अपने इलाकाई अंदाज में अलग पेश किए जाते हैं, लेकिन और उसका हकीकी तलफ्फुज क्या है, ये नाजिम अपने अल्फाज से पेश करता है, तो उसको गौर से सुने। अल्फाज की अदायगी का सलीका आता है। दूसरों की निजामत सुनने से अल्फाज की अदायगी का सलीका आता है, ढंग आता है, अंदाज आता है, तरीका आता है। लबो लहजा दुरुस्त होता है, बोलने का जो अंदाज है, ढंग, वो भी दुरुस्त हो जाता है। अंदाज बयान में तब्दीली आती है। बयान करने का अंदाज कभी तो बहुत आसान अंदाज होता है, लेकिन मौसर होना चाहिए। अंदाज कैसा होना चाहिए, मौसर होना चाहिए, दिल को छू लेने वाला चाहिए, इंसान के दिल में उतरने वाली बात पेश करता हो। सुना हुआ मवाद देर तक याद रहता है। जब भी कोई हमारा प्रोग्राम देखता है तो हमने जो अल्फाज कहे हैं वो लोगों के जहन में बैठ जाते हैं। हमने जो दूसरों से सुना है वो अल्फाज हमारे जहन में बैठ जाते हैं। इसके लिए इसको मौसर बनाने की फिक्र करना, इसलिए दिगर तकारीब की रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए। देखो लफ्ज है तकारीब, ये भी जमा है तकरीब की। किसकी जमा है, तकरीब की जमा तकारीब, यानी बहुत सी जो तकारीब होती है उन तकारीब को हम सुने, रिकॉर्डिंग को सुने। अभी तो यूट्यूब पे तमाम मवाद हाजिर है, उस यूट्यूब पे की हुई निजामत को देखे। यूट्यूब और दीगर चैनलों पर प्रोग्राम सुनते रहना चाहिए, इससे निजामत में निखार आ सकता है। आपने देखेंगे मुशायरों में कई नाजिम ऐसे होते हैं जो सामाइन का दिल जीत लेते हैं और हर इंसान चाहता है कि निजामत करे तो ये इंसान करे। ऐसे कई नाम आपको मुशायरे में भी मिलेंगे जो अक्सर निजामत करते प्रोग्राम की। तो दरमियान में लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ रागिब करने के लिए कभी चुटकुले, कभी अंदाज, यानी हालात को देखते हुए कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो सामाइन के दिल में उतर जाती है, नक्श हो जाती है। इजहार ख्याल की तैयारी, जब हम किसी की तकरीर सुने तो उसके बारे में एक दो जुमले हम भी पेश करें, लेकिन मौसर हो, मुवाफिक हो, मुखालिफ न हो। निजामत में आवाज के साथ इजहार ख्याल में सलीका मंदी और तसलसल जरूरी है। अगर बात मशरिक की हो रही है तो मशरिक की मालूमात इतनी अच्छी दे, वहां इधर उधर की बातें न करे। दिए हुए नुकात के तहत किसी को मदू करने और उसकी बात खत्म होने के बाद मौजू अल्फाज में मुख्तसर और जामे तफसीरा और तमहीदी कलमात कहना जरूरी होता है। किसी को बुलाया जाता है तो बुलाते वक्त के अल्फाज, और जब वो अपनी तकरीर, अपनी खुतबा पेश करके चला जाता है तो उसके बाद के तासुरात या उसके बाद के जो कलमात होते हैं उसमें जान होना चाहिए। अच्छा नाजिम सलीका मंदी से इजहार ख्याल की मश्क करता है। जो निजामत करने वाला होता है वो अपने ख्यालात को लोगों के सामने पेश करने की अच्छी मश्क कर सकता है, करता है, करना भी जरूरी है। प्रोग्राम से कब्ल यानी पहले, कब्ल यानी क्या, पहले। प्रोग्राम से क्या है, पहले क्या करना चाहिए नाजिम को, प्रोग्राम से कब्ल क्या करता हो, कुछ अहम बातों को नोट करके उनकी मश्क कर लेता है ताकि वो उन ताकि दौरान तकरीब उनका इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सके। कभी कभी कुछ अल्फाज ऐसे आ जाते हैं जो अपने इलाके में राइज नहीं होते लेकिन दूसरे इलाकों में राइज होते हैं, तो वो नए अल्फाज, वहां की जो तहजीब है, वहां का जो तमद्दुन है, तो वहां जो पेश किए जाने वाले अल्फाज जो हमारी जुबान पे नहीं होते तो उसकी बाकायदा मश्क की जाती है और नाजिम की जिम्मेदारी है। चौथा मश्क यानी प्रैक्टिस, मश्क करना। किसी भी चीज की मश्क किया करता है इंसान तो उस चीज में या उस शोबे में वो एक्सपर्ट हो जाता है। नाजिम तकरीब को चाहिए कि वो मंदूबीन से मुतालिक मालूमात की जुबानी मश्क कर ले
तकरीब के दौरान कब क्या बोलना है, कहाँ कौन सा शेर पढ़ना है, ये बहुत अहम है। क्या बोलना है, कब बोलना है। जैसे अक्सर कहा जाता है ना, बच्चा 1 साल में 1.5 साल में बोलना सीखता है या 6 महीने में बोलना सीखता है, जो भी वक्त हो उसका बोलना जल्दी सीखता है। 1 साल में 1.5 साल में अच्छा बोलना सीख लेता है, लेकिन कब क्या बोलना है जिंदगी भर सीखता रहता है। बोलना तो पहले सीख लेता है, लेकिन कब क्या बोलना है, कौन से वक्त में कौन से अल्फाज बोलना है, उसके लिए जिंदगी चली जाती है। कभी इंसान एक लफ्ज की वजह से यानी तनज़्ज़ुल से तरक्की की तरफ रागिब हो जाता है, और कभी तरक्की के यानी उरूज की तरफ से जवाल की तरफ भी आ सकता है। कभी एक लफ्ज की वजह से उसके गले में यानी मालाएं डाली जाएंगी, हार डाले जाएंगे, और कभी एक लफ्ज की बिना पर उसे बहुत बुरा भी कहा जाएगा। इसके लिए कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, किस मालूमात को बयान करना है, सामईन की तवज्जो मबजूल कराने के लिए किन बातों का इजहार जरूरी है, कामयाब नाजिम तकरीब से पहले ऐसी मश्क जरूर करता है। कौन सा लफ्ज कहाँ बोलना है, कौन सा शेर कहाँ पढ़ना है, और अगर सुनने वाले इधर उधर मुतवज्जह न, प्रोग्राम की तरफ मुतवज्जह न हो, तो सबको अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करना। अब निजामत शुरू करने से पहले हमने ये जो पढ़ लिया था, ये निजामत शुरू करने से पहले क्या करना है। देखो, पहला, निजामत शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, उसमें पहला लाजमी है कि नाजिम तकरीब के मौजू और उसके मकसद से मुतालिक मालूमात हासिल कर ले। कौन सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम खुशी का है और हम गम की बातें कर रहे हैं, प्रोग्राम गम का है और हम खुशियां मना रहे हैं, ताजियती प्रोग्राम है और हम खुशियों की बातें कर रहे हैं, वैसा न हो, बल्कि मकसद के तहत, जिस मकसद के लिए किया गया उस तहत। तकरीब के दावतनामे के पेश नजर हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखें। इसमें बहुत अहम बात है, जो ओहदेदारान आते हैं तो उन ओहदेदारान के ओहदों को क्या करें, ख्याल रखें कि उसका मर्तबा क्या है, उसका ओहदा क्या है। तीसरा, तकरीब के शुरा सामीन व नाजरीन की उम्र, दिलचस्पी, पसंद और तवक्कात को ध्यान में रखें। जब हम ये मवाद पेश कर रहे हैं, तकरीब पेश कर रहे हैं, तो उसमें बात देखें कि आए हुए मेहमान या आए हुए जो सामीन है, उन सामीन का ताल्लुक या तवज्जो या फिर उनकी पसंद और नापसंद क्या है। वरना हम ऐसी बात करेंगे जो सामीन को बिल्कुल पसंद न हो, तो उसका भी लिहाज रखें। चौथा, तकरीब के दौरान होने वाली तब्दीलियों के लिए जहनी तौर से तैयार रहे। अक्सर ये प्रोग्राम में होता है, तरतीब इस तरह से दी गई है, बोर्ड पे भी लिखा गया है कि इसके बाद ये होगा, ये होगा, पहले से ऐलान किया जाता है वो, लेकिन प्रोग्राम शुरू होने के बाद अचानक उसमें तब्दीलियां आती है, तो तब्दीलियां कबूल करने के लिए हर वक्त तैयार रहे। अक्सर होता है, कितना भी आप प्रोग्राम अच्छा तरतीब दो कि कैसा उसका तसलसल कैसा भी रखो, प्रोग्राम के दौरान वो ऊपर नीचे तो तरतीब होती है, वो बदल ही जाती है। कभी वो आने वाले मेहमान आते ही नहीं, कभी आने वाले मेहमान तो आ जाते हैं, साथ में और एक मेहमान लेकर आते हैं, तो नए आने वाले मेहमान को भी उसमें उनको शुमार किया जाता है, उनको भी मौका दिया जाता है। तो अचानक होने वाली तब्दीली का हमेशा जहन तैयार रहे। बर वक्त तब्दीली हो तो सूरत हाल पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, इसका शऊर रखे, ताकि तकरीब में खलल वाक़ई न हो। अब जो प्रोग्राम में तब्दीली की गई है, उसके लिए इतना तैयार है कि वो तब्दीली जो की गई वो सामीन के सामने न आए, सामीन को मालूम भी नहीं हो कि क्या हो, वरना हम परेशान हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, पूरी पब्लिक टेंशन में आ जाएंगे, पूरे लोग सामीन क्या हो जाएंगे, पब्लिक टेंशन में आ जाएंगे और कहेंगे, मतलब नाजिम की हालत देखेंगे और खुद भी परेशान हो जाएंगे। तो नाजिम इतना तैयार रहना चाहिए कि जो भी तब्दीली हो, उस तब्दीली को कबूल करें और उस अंदाज से प्रोग्राम को आगे बढ़ाए कि दिलचस्पी बरकरार रहे। दौरान निजामत, जब निजामत शुरू हो जाती है तो दरमियान में क्या क्या करना है, बहुत सी अहम बातें यहाँ बयान की गई है। पहला, ऐसा करे ऐसा न करे, 2 बातें बताई गई। शुरू में ऐसा करे, आखिर में कहा ऐसा न करे। डॉक्टर के यहाँ जाते तो डॉक्टर गोलियां देता है, बहुत सी चीजें बताता है और कहा जाता है ये कीजिए, और फिर आखिर में आता है ये न कीजिए, ये करना जरूरी है और ये न करना जरूरी है, ये करना जरूरी है और ये न करना जरूरी है। अपनी जुबान उसको परहेज कहते हैं। अक्सर डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद सब चीजें सुन लेने के बाद वापस ही पे अक्सर मरीज डॉक्टर से यही पूछता है कि डॉक्टर साहब परहेज ने बताया, तो वो परहेज क्या है और परहेज पर अमल करना जरूरी है, वरना दवा कितनी भी अच्छी हो वो इंसान को क्या होती है, बोलो, इंसान उससे फायदा हासिल नहीं कर सकता। तो पहला क्या करना है, तकरीब के आगाज में सामीन को मुनासिब अलकाब से मुखातिब करे,
रिवायत के मुताबिक सलाम व इस्तकबाल करे, तारुफ पेश करे। शुरू में तमाम सामीन का शुक्रिया अदा नहीं करना, इस्तकबाल करना है, उन्हें अच्छे कलमात से, मुअज़्ज़ज़ कलमात से, अच्छे कलमात से उनको मुखातिब करना है। सुनने वाले हमसे छोटे क्यों न हो, आपसे ही गुफ्तगू करना है, अच्छे अलकाब से गुफ्तगू करना है, उन्हें बेहतरीन कहना है। और ये हम समझे कि सबसे बड़ा असासा हमारे सामीन ही है, कि सामीन सुनने वाले अगर कोई न रहे तो फिर हमारी निजामत का क्या फायदा। दूसरा, मुनासिब लब और लहजे और अच्छे अल्फाज में मौजू अशआर की मदद से तमहीदी कलमात पेश करे और तकरीब के उन्वान का ऐलान करे। ये भी बहुत अहम है कि स्टार्ट ही हम अगर अच्छे करें, आगाज अगर अच्छा करें तो अंजाम खुद ब खुद अच्छा ही हो जाता है। आगाज में अगर हम सामीन को कुछ बुरा भला कर दे तो फिर अंजाम अच्छा नहीं हो जाएगा। इसके लिए आगाज में इतना अच्छा करे कि सामीन ये कहने पे मजबूर हो जाए कि ये नाजिम बहुत अच्छा है, निजामत बहुत अच्छी, प्रोग्राम अच्छा हुआ, प्रोग्राम कामयाब रहा। तरतीब शुदा प्रोग्राम के लिहाज से तकरीब को एक रवानी के साथ आगे बढ़ाए। जो तरतीब दी गई है उन तरतीब के साथ, रवानी के साथ, जरा भी न रुकते हुए रवा दवा अंदाज में इसको आगे बढ़ाए। हर मरहले को दूसरे मरहले से मरबूत करने के लिए मुख्तसर व जामे तफसीरा करे। अक़वाल, ज़रीफ़ाना जुमले, अशआर वगैरह से अगले मरहले का आगाज करे। देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है। सबसे पहले क्या, मुख्तसर। कैसा हो बोलो, मुख्तसर। कोई भी चीज हो मुख्तसर, लेकिन जामे। मुख्तसर हो, जैसे मराठी में कहा जाता है थोड़ापन गोड़ा, यानी कम बात हो, छोटी बात हो। इसके लिए अक्सर हम सुनते हैं जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना और मुख्तसर बोलना। छोटी बात हो, मुख्तसर वक्त में, कम वक्त में लोगों के सामने हमारा मैसेज कम अल्फाज में पहुंच जाए। उसके बाद अक़वाल हो, कौल जो होते हैं, कौल की जमा क्या है, अक़वाल। कौल की जमा क्या है, अक़वाल। तो अक़वाल जो पेश किए जाएंगे वो अच्छे अंदाज में पेश किए जाए। फिर कोई कभी ज़रीफाना अंदाज, हंसने हंसाने वाला अंदाज, लेकिन वक्त देखकर, हालात देखकर, हर जगह हंसने हंसाने का अंदाज न हो। उसके बाद आगाज करना, क्या करे, आगाज। आगाज का मुतज़ाद क्या है, अंजाम। आगाज, इब्तिदा, अंजाम। इख्तिताम जो आगाज है, शुरू इब्तिदा है, लेकिन उसका मुतज़ाद अंजाम भी है। चौथा, मौका और महल के लिहाज से वक्त का ख्याल रखते हुए जरूरत के मुताबिक अपनी गुफ्तगू को पेश करे। दौरान निजामत सामीन को अपनी आवाज और मालूमात के सहर से बांधे रखे, सामीन के तजस्सुस को बरकरार रखे, सामीन के जुस्तजू को बरकरार रखे, सामीन की तशनगी को बाकी रखे, सामीन को मुक्ताहट महसूस न हो, सामीन को बोरियत का एहसास न हो। और दूसरा लफ्ज, अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया गया, सहर। सहर यानी क्या, एक लफ्ज उसकी माने सुबह थी, लेकिन यहाँ सहर यानी जादू। सहर यानी क्या, जादू। मतलब अपनी गुफ्तगू में लोगों को ऐसा ले ले, मुतासिर करे कि वो आपके बातों में आ जाए, आपकी तरफ ही राग़िब रहे, उनका ध्यान कहीं और न रहे, तो उसकी कोशिश करे। पांचवा, बरवक्त हालात के लिहाज से मुनासिब तब्दीली करे। हालात अगर अचानक तब्दील हो जाते हैं, कोई तब्दीली आ जाती है, तो उस तब्दीली को कबूल करे फौरन। ये नहीं कहे कि नहीं मेरी निजामत में ये नहीं लिखा, मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करे। उस तब्दीली को कबूल करे और प्रोग्राम को कामयाब करने की फिक्र करे। ये बातें करने की है। अब बातें न करने की लिखा है, उसको ऐसा न करे। अब ऐसा न करे में 4 नुकात है। देखिए, पहला नुकता, मुबालिगा आराई से काम न ले। बातें जमीन की हो रही है, हम आसमान तक सामीन को पहुंचा रहे हैं और आसमान पर कुछ भी नहीं, न बादल भी नजर आ रहे, न बारिश नजर आ रही, कुछ भी नहीं नजर है। मतलब जो सही है, हकीकत है, उसी को बयान करे, बढ़ा चढ़ाकर कोई बात पेश न करे। हमने ये किया, ये किया, ये किया, ऐसा न करे, बल्कि हमने ये किया है, ये करना बाकी है। दूसरा, चीखो पुकार न करे। बार बार माइक पे चीखते नहीं रहना चाहिए, बल्कि आवाज का उतार चढ़ाव होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा चीखना चिल्लाना न हो। मुकर्रिरीन की तमाम बातों को न दोहराए। मुकर्रिर, तकरीर करने वाला, जो तकरीर करने वाला होता है उसको मुकर्रिर कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकर्रिर कहते हैं। अब तकरीर करने वाला आधे घंटे की तकरीर करके गया, अब हम उसी बात को आधा घंटा न दोहराए, बल्कि 1 मिनट के अंदर उसकी तकरीर का निचोड़ बताए। किसी ने बहुत सी तरक्की के काम बताए और तरक्की के मैं ये करूंगा, वो करूंगा, हम उसको सराहे कि मुकर्रिर ने ये बात पेश की है, हमें उम्मीद है कि ये बात पूरी होकर रहेगी। सही गलत का फैसला न सुनाए, मवाजना न करे। अब जैसे 2 मुकर्रिर बात करके चले गए, एक ने मुआफिकत में बात की, एक ने मुखालिफत में बात की, तो हम ये पेश न करें कि इसने सही किया कहा और इसने गलत कहा, मवाजना न करे, कंपैरिजन न करे, बल्कि
हम दोनों की बात को सराहे और आगे बढ़ जाए। बार बार एक ही बात की तकरार न करे, एक ही लफ्ज बार बार दोहराए नहीं। कोई एक लफ्ज बार बार दोहराया जाता है तो उसकी वजह से, तकरार की वजह से सामईन जो होते, जो सामे होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता और ये अच्छी बात नहीं है। कोई एक लफ्ज है बार बार उसको दोहराया जाए, ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि नए नए अल्फाज लोगों के कानों तक पहुंचाने की फिक्र करे ताकि लोगों को सुनना भी अच्छा लगे और मालूमात में इजाफा भी हो जाए, नए अल्फाज का जखीरा उनके पास मौजूद पहुंचता रहे। अगर इन तमाम बातों पर तवज्जो दे तो आप एक अच्छे नाजिम बन सकते हैं। यहाँ बहुत अहम बात बताई गई है कि जो नाजिम है, उस नाजिम ने अगर ये तमाम बातों पर अमल किया, इस नाजिम ने तमाम बातों पर अमल किया, निजामत करने वाले ने, तो लोगों को फायदा होगा। एक तो फायदा होगा कि तकरीब में जो बातें कही जा रही वो जहन नशीन हो जाएंगी। दूसरा ये हो जाएंगे कि अल्फाज का जो जखेरा है, एक ही लफ्ज है तो उस लफ्ज को और भी कई अल्फाज से जाना जाता है, पहचाना जाता है और उसको कहा जाए। जैसे आसमान है, आसमान 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 बार बार कह रहे हैं, उसके लिए हम लोग लफ्ज फलक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे कई अल्फाज है, तो उन अल्फाज को हम क्या करें, इस्तेमाल करने की फिक्र करें ताकि निजामत कामयाब हो, प्रोग्राम कामयाब हो और प्रोग्राम की कामयाबी का पूरा इन्हिसार नाजिम पर, निजामत करने वाले पर होता है। इसके लिए जब भी आपको जिम्मेदारी निजामत की दी जाएगी तो आप इस बात का ख्याल रखें कि मुझको सिर्फ निजामत सिर्फ करना नहीं है, बल्कि प्रोग्राम को कामयाब किस तरह बनाना है, इसके लिए अपनी निजामत को कामयाब बनाएं ताकि निजामत कामयाब, प्रोग्राम भी कामयाब हो जाएगा। पिछले साल और हर साल अपने कॉलेज में अलग अलग उन्वानात पर प्रोग्राम होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने कॉलेज के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे, 5वीं के बच्चे भी तैयार हो जाते हैं निजामत करने के लिए और कामयाब निजामत करते हैं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के साथ आपको पिछले साल जो अलविदाई जलसा हुआ था, जिसमें इनकलाब के एडिटर शाहिद लतीफ साहब और मुंबई यूनिवर्सिटी के साबिक शोबे सदर उर्दू, जो मुंबई यूनिवर्सिटी से आए थे, जिनका नाम डॉक्टर अब्दुल सत्तार दलवी, और बड़े बड़े मेहमानान भी तशरीफ लाए थे और बच्चों को क्या उसका तकसीम इनामात भी था, अलविदाई जलसा भी था 10वीं 12वीं वालों के लिए। तो एक बड़ा प्रोग्राम था, 3 घंटे का तकरीबन, और इसकी निजामत अपने ही कॉलेज की 2 लड़कियां, मुस्कान डिगनकर और ईसाने जुवेरिया जावेद और मुस्कान डिगनकर मुस्कान अय्यूब, इन दोनों बच्चों ने बेहतरीन अंदाज में उस प्रोग्राम की निजामत की थी। प्रोग्राम मुकम्मल हो रहा, कामयाब रहा। वही निजामत जो पिछले साल दोनों बच्चियों ने की थी, 11th साइंस में थे वो, अभी इस साल 12th साइंस में है। तो निजामत आपको लिखी हुई इस वीडियो के साथ रवाना की जा रही है। उस निजामत को आपको मजमून की बयाज में लिखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।